अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑडिटिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग इज सच एन एक्सरसाइज which enables the auditor to give an independent and professional opinion on the financial statements of the entity. अब इसका द इंडिपेंडेंट ओपिनियन कब दी जा सकती है? व्हेन ही इज assured that the financial statements are free from all material respects and are prepared in accordance with the provisions of Companies Ordinance 1984 and in accordance with the international financial reporting standards और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर जो है whether or not the financial statement give true and fair view of the state of affairs of the entity or not for the period under review. This is the objective of an auditing. So what is true and fair view? Today we are going to discuss about it. सबसे पहले we discuss about the fair presentation. In order to provide useful information to the stakeholders of the business, the financial statements must fairly present the position and performance of that business that or show a true and fair view. Whilst this has never been formally defined, it embodies that concept. Financial statements are in compliance with relevant laws and regulations, and number two, compliant with relevant financial reporting framework. अब इसकी कोई जो है ना एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू की। सो इसके हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उस कंट्रीज की जहाँ पे ये एंटिटी ऑपरेट कर रही है उसके जो रेलिवेंट लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं उसके साथ ये मीटअप कर रही है। सेकेंडली उस कंट्री के लॉज और IFRS के मुताबिक जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी प्रिपेयर की गई हैं। Assurance and reports. The auditor's report on the company's financial statement is expressed in terms of truth and fairness. This is generally taken to the mean that the financial statements are factual. जो financial statements हैं वो factual figures के ऊपर बनाई गई हैं। अगर हमने एक business transaction जो है 1 million की है तो उसको जो जनरेटिव भी है वो भी 1 million की होनी चाहिए, rather than कोई हम इसको 10 million का शो करके बाकी अमाउंट इसका जो है वो करप्शन में चला जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम बायस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको इस तरह से आपने एज पर लॉज बनानी है, एज पर स्टैंडर्ड्स बनानी है कि वो जो है 100% क्या होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। किसी की अपनी मर्जी के मुताबिक या किसी की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको नहीं होना चाहिए। इसका जो है आपकी तमाम ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। The financial statement should reflect the commercial substance of the business transaction. ओके मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कमर्शियल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है। A business transaction is said to have commercial substance when it is expected that future cash flows of the business will change as a result of such business transaction. अगर कोई आपकी business transaction अगर होती है तो इससे ऑब्वियसली आपके क्या होंगे, आपके कैश फ्लो को जो है ना चेंज हो जाना चाहिए। देखें बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, आपका या तो इसमें कैश जा रहा होगा या फिर आपके पास कैश आपके पास आ रहा होगा, या ऑन द अदर हैंड या तो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ रहे होंगे या आपके क्या होंगे इसमें अकाउंट्स पेबल क्या होंगे वो भी इंक्रीज कर रहे होंगे। द फ्यूचर सब्सटेंस, देखिए ना फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि ये आपका जो होगा इसमें कैश फ्लो जो होगा इधर इट इज इनफ्लो या आउटफ्लो वो क्या होगा वो इसमें बढ़ रहा होगा। Truth and fairness, fair presentation. External auditors give an opinion on the fair presentation or truth and fairness of the financial statements. Fair presentation, the term used in the IAASB, International Audit Accounting and International Audit and Assurance Services Board, it means, and international ISAs, International Statement on Auditing and Truth and Fairness. The term used in ISAs, UK and Ireland, mean essentially the same thing. ये तमाम स्टैंडर्ड, ये तमाम जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं इनके अंदर ट्रूथ एंड फेयरनेस का सेम ही मीनिंग लिया जाता है, जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। द ऑडिट ओपिनियन इज नॉट एन ओपिनियन ऑफ एब्सोल्यूट करेक्टनेस। ऑडिट की जो ओपिनियन होती है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, वो रीजनेबल हद
तक ऑडिटर जो एश्योरेंस दे सकता है, लेकिन कभी भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, जो कि हमने इससे अर्लियर लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ये होती है कि आपकी जो ऑडिट होता है वो इज सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग। आप कभी भी एक किसी बिजनेस वेंचर का 100% ऑडिट नहीं कर सकते। आप उसका सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहे होते हैं ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम बजट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अंदर एक और इनहेरेंट लिमिटेशन होती है कि हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं एज एन ऑडिटर वो एक जजमेंट बेस होता है। और नंबर थर्ड, इसमें एक और चीज हम ये ले सकते हैं कि इसके अंदर बात हो रही थी कि ह्यूमन एरर भी हो गया, जजमेंट भी होगी, सैम्पलिंग भी हो गई, और जो है समटाइम्स फ्रॉड्स आर समथिंग व्हिच आर बहुत अच्छे से वो प्लान किया जाता है, उसको पकड़ना ऑडिटर के लिए वो जो होता है मुश्किल होता है। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ व्हाट इनहेरेंट लिमिटेशंस। सो the audit opinion is not an opinion of absolute correctness. True and fair view are not defined in law or audit guidance, but the following definitions are generally accepted. Now, what is true? Information is factual and conforms to the reality. In addition, the information conforms to the required standards and law. The financial statements have been correctly extracted from the books and records. Now, what is fair presentation? Information is free from discrimination and bias and in compliance with expected standards and rules. The accounts should reflect the commercial substance of the company's underlying transaction. हमने भी factual को भी discuss किया, हमने unbiased को भी discuss किया, और हमने अनबाइस को भी डिस्कस किया, और हमने कमर्शियल सब्सटेंस को भी हमने डिस्कस किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रू एंड फेयर व्यू का एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा। और अगर इसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको समझ नहीं आई या फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई ऐसा पॉइंट है, तो प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस और अब अपने क्वेश्चंस में से शेयर कीजिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को, अपने आप लोगों की क्यूरीज को इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।